Good morning, students. Welcome to TSN online class for class 11th, chapter 21, Neural Control and Coordination. In previous videos, we discussed about the nervous system present in invertebrates and higher vertebrates. And we generally discuss about the CNS, PNS, central nervous system and peripheral nervous system. Now we discuss about the transmission of impulse. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction is called synapse. A synapse is formed by membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may not be separated by a gap called synaptic cleft. Okay. सो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस टाइप से न्यूरॉन होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में आपको पता है बेटा सिनेप्टिक जंक्शन प्रेजेंट होता है, राइट। सो यहाँ पे जो जंक्शन बनता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट उसे हम कहते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस नेमली इलेक्ट्रिक सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। तो यहाँ बेटा इलेक्ट्रिकली भी इंफॉर्मेशन आगे जाती है और केमिकली भी आगे जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज proximately an electric current through flow directly from the neuron into the another across these synapse. Impulse transmission may across an electrical synapse is always faster than that the across a chemical synapse. Electrical synapse are found in the cardiac muscle, smooth muscle fiber of intestine and epithelium cells of liver. So बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है ये बहुत फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू केमिकल मूवमेंट। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल फाइबर में और स्मूथ मसल फाइबर और इंटेस्टाइनल और एपिथेलियम सेल्स ऑफ लीवर में ये इस टाइप का जंक्शन प्रेजेंट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट केमिकल सिनेप्स। व्हाट इज केमिकल सिनेप्स? The membrane of pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. Chemicals are neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at synapse. The axon terminals contain vesicles filled by these neurotransmitter. When impulse arrives at the axon terminal, okay, then stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release this neurotransmitter in synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to the specific receptor present on the synaptic or postsynaptic membrane which opens ion channels, allow the entry of ions which are generate new potential in the postsynaptic neuron. सो बेटा केमिकली सिनेप्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में स्लो होंगे और यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में केमिकल रिलीज होगा विच वी कॉल न्यूरोट्रांसमीटर। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। आपने एग्जांपल सुना होगा एसिटाइल कोलिन। सो बेटा यहाँ पे चैनल से ये केमिकल चैनल से ये रिलीज होते हैं और मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं, राइट। आपको डायग्राम में ये क्लियर हो रहा होगा बेटा। So now we discuss about CNS, central nervous system. The brain is the central information processing organ of body and acts as command and control system. Okay, the control of voluntary movement, balance of body, thermoregulation and brain also process vision, hearing and speech. सो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होगा? ये एक सेंट्रल पार्ट है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के ऑर्गेनल्स को, राइट। और इसी टाइप से ये क्या करता है? पूरी बॉडी में बैलेंस करता है मूवमेंट के लिए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट, थर्मो रेगुलेशन और हियरिंग, विजन सभी के लिए कंट्रोल और कमांड करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल. इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड by cranial meninges are called. Outer layer is called dura mater. A very thin middle layer is covered by cranial, okay, a very thin middle layer called arachnoid and the inner layer is called pia mater, right. So बेटा हम नॉर्मली बात करें तो बेटा जो ब्रेन की जो
ब्रेन की जो मेनिंजेस है मीन्स उसकी जो लेयर है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर लेयर को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, सेकंड को हम एरेक्नॉइड कहते हैं और थर्ड को जो इनर है उसे पाया मैटर कहते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड फॉर ब्रेन, सेकंड इज कॉल्ड मिड ब्रेन एंड थर्ड इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। तो बेटा ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डायग्राम आपको क्लियर है? डायग्राम शोज सेगमेंट सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपको डायग्राम में सेगमेंट्स दिख रहे हैं। फॉर ब्रेन जो फॉरवर्ड पार्ट है, मिड ब्रेन और लास्ट में हाइंड ब्रेन। सो फॉर ब्रेन, द फॉर ब्रेन कॉन्सिस्ट सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो बेटा फॉर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है? सेरिब्रम जो बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करता है, सेकेंड इज कॉल्ड थैलेमस एंड थर्ड इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। A deep clip divided the cerebrum longitudinally into two halves, half of the term as the left and right cerebrum hemisphere. So बेटा जो सेरिब्रम है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसे हम कहते हैं सेरिब्रम हेमिस्फीयर, और जो इसे डिवाइड करता है विच वी कॉल कॉर्पस कैलोसम। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर। ये अभी हमने डिस्कस किया, जो नर्व फाइबर है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। द आउटर कवर ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रम कॉर्टेक्स। उसका जो आउटर पार्ट है वो सेरिब्रम कॉर्टेक्स है। इट इज रेफर टू ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। ओके, द सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज gradually folded. Upward grooves are called grai and alternate with the downwards are called sulci. Okay, सो बेटा यहाँ पे आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कॉर्टेक्स पार्ट में ग्रे मैटर आउटर पार्ट में रहता है और वाइट मैटर इनर पार्ट में रहता है, और जो ग्रूव्स होती है डाउनवर्ड्स होती है उनको हम ग्राई और सल्सी कहते हैं, राइट। द सेरिब्रम कॉर्टेक्स कंटेन मेजर एरिया ऑफ सेंसरी एरिया, large region that the neither clearly sensory nor motor in function. These regions are called association areas. Fibers of the tracts are covered with the myelin sheet which constitute the inner part of cerebrum hemisphere, which gives an oblique with white appearance to the layer here we call white matter. अभी हमने डिस्कस किया जो ब्रेन के अंदर जो इनर पार्ट होगा वो वाइट मैटर होगा, राइट। अब बेटा यहाँ माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है कि इनमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। द सेरिब्रम वार्प्स अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस which is major conducting center of sensory and motor. Hypothalamus, another part of brain, lies at the base of the thalamus which control body temperature and urge of eating. Hypothalamus also consists several groups of neurosecretory cells which secretes हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फीचर आता है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इसे हम हेडमास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी पे कंट्रोल करता है, राइट, और पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज और इनिबिट करता है। ओके बेटा, एंड देन वी डिस्कस अबाउट ईच सेरिब्रम हेमिस्फीयर ऑफ द cerebrum is divided into 4 lobes. First, frontal, parietal, temporal, occipital, which are involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotions. Okay बेटा, तो यहाँ पे सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो है सेरिब्रम हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रम को जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है लोब में। फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल लोब है, इसी टाइप से पैराइटल लोब है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेंटर्स प्रेजेंट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन। The midbrain is located between the thalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. The canal called of cerebrum aqueduct pours through the midbrain. The dorsal portion of midbrain consists mainly 4 rounded swellings called corpora quadrigemina. Important feature है बेटा कि मिड ब्रेन में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्परा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। सो मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाइंड ब्रेन। द हाइंड ब्रेन कंप्राइज पोन, सेरिब्रम एंड मेडुला। सो बेटा जो हाइंड ब्रेन है वो पोन्स बनाता है, सेरिबेलम बनाता है,
और मेडुला ऑब्लिगेटा बनाता है, राइट। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पोन्स कॉन्सिस्ट ऑफ फाइबर टैक्स इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। अब बेटा आपको पता है पोन्स में हमारे रेस्पिरेटरी के भी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अब सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट हैज़ convoluted surface of order to provide additional space. Many neurons and medulla of brain are connected to spinal cord. So यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ये न्यूरॉन कनेक्टेड रहते हैं ब्रेन। ओके, सो बेटा ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट था और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेडुला विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। Medulla oblongata is connected to the spinal cord and consists centers which control respiratory rhythm, cardiovascular reflexes, gastrosecretions and posterior gestures of the body. So बेटा ये control और coordination का work medulla करता है ना, right? So this is a very important topic, okay बेटा, and this is the complete of this part.